یہ ہے کہ مودی کے غرور کا سر نیچا ہو گیا ہے۔ وہ مودی سرکار جس نے امن سے دشمنی کی بات کی اور اب بات چیت کی بات کر رہا ہے۔ مودی سرکار نے پاکستان کو مذاکرات کے لیے پیغام بھجوا دیا ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے آج بھارتی صحافی کو انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت اب وزیراعظم کے ساتھ مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہا ہے، جو ایک بڑی تبدیلی ہے۔ وہ رائزنگ اور شائننگ انڈیا جسے مودی نے اپنی ہندوتوا کی پالیسی سے تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جب مودی کو پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دی تو مودی نے اسے ٹھکرا دیا تھا، لیکن 5 اگست 2019 کو مودی کی کشمیر پر فوج کشی اور مظالم کی انتہا نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ اب مودی سے بات نہیں ہوگی۔ لیکن اب ایک بار پھر سے مودی سرکار مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہی ہے۔ سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف نے بھارتی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا دیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور اس کے ثبوت بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ یعنی مودی نے بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست بنا دیا ہے جو دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے لیے نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اب پاکستان ان ثبوتوں کو پوری دنیا کے سامنے لے کر جا چکا ہے اور بھارت کے شفاف چہرے کو بے نقاب بھی کر چکا ہے۔ بھارت کو اس وقت سفارتی محاذ پر بڑی شکست کھانی پڑی ہے اور مودی کا جنگی جنون اب خاک میں مل رہا ہے۔ اب پاکستان ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھارت نے اے پی ایس حملے کو سپانسر کیا تھا۔ حملے سے پہلے ٹی ٹی پی کمانڈر کو بھارت سے آنے والی فون کالز جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، ریکارڈ کی گئی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس ہینڈلرز نے گزشتہ 2 برس میں کراچی میں چینی قونصل خانے، گوادر میں پی سی ہوٹل اور اسٹاک ایکسچینج پر حملے کروائے۔ پی ایل اے کے دہشت گرد نے نئی دلی کے ایک اسپتال میں علاج بھی کروایا اور حال ہی میں راؤ افسران کی نگرانی میں افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کو ضم بھی کیا گیا اور اس کے لیے $10 لاکھ جو ہے وہ دیے گئے۔ اب بھارت سفارتی جنگ میں بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایل او سی ہو یا پھر ایل اے سی، بھارت کی مشکلات ہر جگہ پر بڑھ رہی ہیں۔ اگر بھارت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو کیا ایسی شرائط ہیں جو پاکستان کی جانب سے پیش کی جائیں گی؟ ان تمام معاملات پر خود سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے انٹرویو کی اس وقت بھارتی میڈیا میں بہت زیادہ گونج ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بھارت کا جنگی جنون ڈاکٹر صاحب کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بار بار بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتا رہا اور وہاں سے بار بار جو ہے وہ ٹھکرائی جاتی رہی۔ یہ جو نئی خواہش جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا خواہش ہے، کس لیول پر جو ہے اس کی دعوت دی گئی ہے اور اب کس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ پاکستان کو بھجوائے جا رہے ہیں؟ جی اللہ کرے کوئی یو ٹرن آئے، میرا خیال ہے وہ ذرا غلط اس کا مطلب لے لیا گیا ہے۔ دیکھیے اس طرح بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی تھرڈ ایکٹر کوئی یہ ٹیسٹ کرتا ہے جی بات ہونی چاہیے، آپ تیار ہیں نہیں ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی ڈائریکٹلی ایسی بات ہوئی، ہم تو کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں کر رہے، کوئی بیک چینل نامی قریبی بھی چیز ایسی نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ ان کو یہ خیال آ جائے فوری طور پہ بات ہونی چاہیے۔ اس کی کنڈیشنز ہم نے ان کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جب آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں گے جس چیز کی بات ہونی ہے، جن لوگوں کی بات ہونی ہے، وہ آپ کی شکل دیکھنے کو تو پہلے تیار ہو جائیں تو ہم سے بات کر لیں گے۔ دہشت گردی آپ یہاں کر رہے ہیں، بات آپ کرتے ہیں دہشت گردی کی، آج کے بعد پاکستان بات کیا کرے گا کہ آپ دہشت گردی کرتے ہیں، اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے، یہ معاملات حل کریں ورنہ دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوتا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا پاکستان کے پاس واضح ثبوت ہیں، ٹھوس ثبوت ہیں، جو دہشت گردی کے انسیڈنٹس بھارت نے کروائے ہیں ان کی بھی تفصیلات آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کی۔ مجھے یہ بتائے گا کہ اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز کھلے ہیں، کس طریقے سے بھارت کے اوپر انٹرنیشنل فورمز پر جا کر پابندیاں لگوائی جا سکتی ہیں اور اس چیز کو بتایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو سپانسر ہے اس دہشت گردی کو کیا جا رہا تھا؟ اچھا یہ بات کرنا قبل از وقت ہے، اس پہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے، وزارت خارجہ نے اس میں یہ تو وزیر اعظم صاحب تک بات آئے گی، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ۔ بہرحال آپ کو ڈائریکشن صاف نظر آ گئی ہے، اس سے زیادہ دو ٹوک الفاظ میں ان کے سامنے چیز نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ وہ تو آئے تھے بات کرنے اور آج کرن تھاپڑ صاحب نہیں تھے، وہ اپنی بولی نہیں بول رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آئے تھے یہ بات کرنے کہ پاکستان دہشت گردی پہ کچھ نہیں کر رہا وغیرہ۔ ان کو تو ان کے خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آج بات کیا ہونی ہے، اور وہ انٹرویو میں واضح ہو گیا اور نظر آ رہا تھا کہ کس طرف بات ہے ان کے چہرے سے۔
अच्छा डॉक्टर साहब, पहली बार पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फॉरम को जो है वो इस्तेमाल किया और वहां पर जो है वो भारतीय दहशतगर्दी के सबूत रखे हैं। भारत तो ये खेल दहाइयों से खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आखिर पहले क्या लगता है आपको, क्यों उस तरीके से जो है वो भारत को रोकने की कोशिश नहीं की गई? आलमी प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए कोई लगाम डालने की कोशिश नहीं हुई? इससे पहले भी बहुत सारे सबूत हमारे हाथ लगे, कुलभूषण जाधव से बड़ा कोई जो चीज है वो नहीं हो सकती, लेकिन उस मौके को भी जाया किया गया। देखिए आयशा, मैं पहले की बात कर नहीं सकता, मैं तो सिस्टम में नहीं था। फैसले होते हैं, उनका मंतक होता है और वो सारी चीज़ें तो हर एक के सामने नहीं होती हैं। तो मैं तो नहीं था उस वक्त, मैं नहीं कह सकता। अभी का मैं आपको बता सकता हूँ, शवाहिद हमारे पास, सबूत हमारे पास, आज हमने खुल के ये बात कर दी। और जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे ये जाना चाहिए, जिस फोरम पे वहाँ जाएगा, एक टाइमिंग का भी इशू होता है। दुनिया कब आपकी बात सुनने को तैयार है या नहीं, उसका सिर्फ असूलों पे जो है वो मुनसर नहीं होता, उसका इन्हिसार इस चीज़ पे होता है उनके मफादात, वो क्या देख रहे हैं अपने लिए। तो अब भारत जहाँ पहुँच गया है, तमाम दुनिया की वेस्टर्न प्रेस ले लें, जो ले लें, वो पिछले 2 साल से बड़ी कोशिशें हैं पाकिस्तान की, वजारत ख़ारजा की, कश्मीरी डायस्पोरा सबसे आगे, उनका अब चेहरा बेनकाब हो रहा है। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं कहता दहशतगर्दी कश्मीर में, कोई नहीं कहता कि भारत जो है वो बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है। सबको नज़र आ रहा है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, मफादात अभी भी हैं, कोई ये नहीं कहेगा जी आज भारत वो कर ले जो पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली आएगी। वी हैव नो रीज़न टू बी ऑन द बैक फुट। सही। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें यह इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान और चीन एक मिशन के तहत भारत के साथ जो है वो सरहदी तनाज़ात को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त LAC और LOC के हवाले से अगर बात की जाए, क्या कोई जंग का खतरा मंडला रहा है? ये एक ऐसे ही जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं भारत की तरफ से, वो स्टेटमेंट था या इसके पीछे भी कुछ है? उनकी किस्मत अच्छी है, उन्होंने सवाल नहीं पूछा, जवाब उसका भी तैयार था। अच्छा। ये जो टू फ्रंट कहते रहते हैं, क्या किया पाकिस्तान ने टू फ्रंट करने के लिए? हम फायदा नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे। क्या किया? कोई फौज वहां मूव की, कोई उनको तंग किया, कुछ किया? नहीं। भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल स्टेट, हम नहीं चाहते यहाँ कोई खित्ते में इस तरह का जो जंग हो। चीन भी इससे ज़्यादा मैच्योर पार्टनर पाकिस्तान को दुनिया में नहीं मिल सकता। वो खुद नहीं है कभी कहता कि पाकिस्तान जो है कोई ऐसी चीज़ उनके लिए करे। देखें, ये होता है रियासती कैरेक्टर। क्यों कह रहा है हिंदुस्तान बार बार ये बात? इसलिए कि अगर वो इस जगह होते तो वो ज़रूर टू क्रिएट कर देते, ये सोच है। इसलिए उनको लगता है दूसरा मुल्क भी करेगा, हमने तो ना किया ना करेंगे। अगर वो, मुझे तो लगता है वो चाहते हैं हम कुछ कर दें ताकि वो ये कह सकें कि जी वो देखें वो उधर क्या हो रहा है और कश्मीर से नजर हट जाए दुनिया की और चाइना से हट जाए वगैरह। तो इतनी बेवकूफ़ी तो यहाँ नहीं होने वाली। तो जाहिर है बहरहाल वो सवाल जवाब हुआ नहीं उस चीज़ पे, तो कोई बात। अच्छा, भारत के बारे में भी तो ये कहा जाता है ना कि वो अमेरिका की पुष्पनाही की वजह से खित्ते में चीन के साथ तनाज़ात को बढ़ा रहा है, अमन को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुलकर चीन के साथ खड़ा है। तो इस तनाज़ुर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं दो तरफा, वो अब कैसे हैं? उनको किस तरह से डील किया जा रहा है या आगे फ्यूचर में चलकर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो हिंदुस्तान काउंटर वेट वाली बात है ना, ये काउंटर वेट वो होता है जो अंदर से खोखला ना हो। काउंटर वेट होने के लिए भी तो कोई ताकत चाहिए। तो जिस तरफ हिंदुस्तान चल पड़ा है वो तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। जो भी उनको काउंटर कराना चाह रहा है वो तो इस काउंटर के काबिल ही नहीं रहेंगे। और हिंदुस्तान की भी मैं आपको बता दूं, ये जो बात है ना कि बिडिंग हो रही है, वो SCO का, वो जो मैप का हमारा नक्शे का उस मीटिंग में मसला हुआ था, वो भी SCO को उन्होंने स्नब किया था। और क्या है, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। एक तरफ वो ट्रम्प साहब वीज़ों पे और ट्रेड पे उन पे सैंक्शन लगा रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इस पे वो बढ़ा चढ़ा के नहीं सोचना चाहिए कि वो उनमें बहुत दरारें, बहुत मसाइल हैं। वो कोई किसी किस्म की नेचुरल पार्टनरशिप, नेचुरल अलायंस नहीं है। हो कैसे सकती है? आप देखें सही हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। अमेरिका में खुद नहीं पता अभी इलेक्शन होना है, किस तरफ बात जानी है। तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात मजबूत इंशाल्लाह रहेंगे। अफगानिस्तान में हमें क्रेडिट मिला है और मिलना चाहिए। और बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। हम किसी इस तरह के चक्कर में नहीं है कि उसके साथ, उसके खिलाफ। पाकिस्तान दुनिया को इकोनॉमिक बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा है। जिसका दिल करता है यहाँ इन्वेस्ट करे, हमारे लिए अच्छा है। सही है। अच्छा, अब जैसे कि आप बहुत वजाहत कर चुके हैं इस चीज़ की कि क्या क्या शराइत हो सकती हैं अगर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाता है। CPEC को सबोताज करने की कोशिशें तो बेशुमार हुई हैं। कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है भारत का, और अगर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं तो क्या फ्यूचर में इवेंचुअली भारत इसका कोई हिस्सा भी हो सकता है या बेल्ट एंड रोड मंसूबों का हिस्सा बन सकता है?
आशा आप किधर पहुंच गई हैं? अभी तो ये दुआ करें कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, वो जो बेसिक काम है वो तो कर लें, कश्मीरियों को इंसान तो समझना शुरू करें, फिर आगे सोचेंगे कौन सा कहाँ किसने करना है। ये बड़ी अट्रैक्शन हो सकती है ना डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी अट्रैक्शन हो सकती है। और ये जब हम इंडिया कहते हैं, उधर भी 70% लोगों ने तो उनको वोट नहीं दिया था, वहाँ भी बहुत सेंसिबल लोग हैं। आखिर पहले भी हमने बातचीत उनसे की है, तो इंशाल्लाह ये ट्रांजिटरी चीज़ है। मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, इंशाल्लाह ये दिल टू देयर सेंसेस, कोई आएगा वहाँ पे कोई ना कोई चेंज। वरना इस तरह तो मतलब देख ले, कोई हमसाया है जो उनसे बात कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए, तो मुझे तो खुश होना चाहिए एज ए पाकिस्तानी ऑफिशियल। हम तो फिर कह रहे हैं यार, हम अमन के लिए खड़े हैं, हम सुलह चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मिल बैठ के काम हो, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं, उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, वो चीज़ें पूरी करें, हमसे बात कर लें। नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह 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 जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके पीछे क्या माजरा हो सकता है? क्या मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक ट्रैप है। मोदी एक सिंसियर आदमी नहीं है और कोई ऑनेस्ट आदमी नहीं है, सो इस पे बड़ी मोहतात रहना चाहिए। वो ये है कि इनके सर पे खौफ एक तारी है कि चाइना के साथ हमारा मसला बना हुआ, तो ये ना हो कि टू फ्रंट वॉर जो है वो शुरू हो जाए, यानी जंग हो, और चाइना के साथ अगर इनकी जंग होती है तो पाकिस्तान भी उस मौके को गनीमत समझ के तो वो भी कुछ कर दे। लिहाजा ये इनकी स्ट्रेटजी है कि स्टेज के ऊपर पाकिस्तान को आप ल्योर इन करें और पाकिस्तान के साथ सिचुएशन को डिफ्यूज करें। आपको बातचीत में उलझा के, हाल उन्होंने कोई नहीं करना है, कुछ किसी चीज की तरफ आना नहीं है, वक्त आपका जाया करके तो चाइना के साथ मामला अपने चुकाने की कोशिश करेंगे। ये वो चीज है जिससे हमने बचना है। मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने बड़ा किया है कि एक तो भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने रखा कि ये दहशतगर्दी करवाते हैं, बड़े बड़े वाकयात करवाए इन्होंने। उसके साथ साथ वो शराइत रख दी ताकि भारत ये न कह सके कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात के लिए शराइत होना जरूरी, क्योंकि आफ्टर ऑल भारत ने भी तो इतने से शराइत रखी थी कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे। अब पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कर नहीं रहा था, लेकिन यहाँ हुकूमतें ऐसी बैठी थी जो भारत की खिदमत के लिए तैयार थी और लगता यूं ही था कि वो भारत की वकालत कर रही है यहाँ बैठ के। तो आज अगर हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी और आपने आंखें दिखाई हैं तो बिल्कुल सही है, उनका चेहरा बेनकाब करें और जो आपकी शराइत है वो बिल्कुल जायज है, उस पर आप खड़े रहें। सही, यानी मतलब अगर कोई कोशिश होती भी तो आपको नहीं लगता कि कोई सेंसर जो है वो कोशिश हो सकती है? डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने जैसे कि बताया कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हैं, इंसिडेंट्स का हवाला भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, बड़े ठोस किस्म के सबूत जो मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से स्पॉन्सर किया जाता रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को। अभी क्या ऑप्शंस जनरल साहब हमारे पास खुल गए इन तमाम चीजों के बाद, और इन सबूतों को कौन कौन से फॉरम के ऊपर जाकर जो है वो ले जाया जा सकता है और भारत को एक्सपोज किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो मसला है वो ये था कि पिछले 5 साल जो हुकूमत हुई उन्होंने इन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया। जो आपके पास शवाहिद है बहुत सारे पहले से, कलभूषण वाला, उसकी सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो करता रहा, उसकी मनी ट्रेल हमारे पास थी। इसी तरह एपीएस का जो मास्टरमाइंड उसका सारा वो चीजें पहले से हमारे पास मौजूद थी, लेकिन किसी काम नहीं किया। अब आप लेट हैं, आपको 2 साल हो गए एड़ियां रगड़ते हुए एफएटीएफ में। ये काम आपको करना चाहिए था भारत के खिलाफ। अब भी कोशिश करके देखिए, क्योंकि शवायद तो है आपके पास, ये ना और शवायद को रख छोड़ना वो मुनासिब नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप अपने माथे से वो टैग, वो कलंक उतारें जो भारत पूरी दुनिया में लगाता रहा और हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे खामोश नहीं। 70,000 लोग हमारे मारे गए और दुनिया में भारत हर किसी को कहता था कि जी ये टेररिस्ट हैं, टेररिज्म कराते हैं। आप सोचिए कि ये इस तरह का जुल्म किसी और जगह पे होगा किसी मुल्क के साथ? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की नालायक हुकूमतों की वजह से कि जिन्होंने ये टैग कबूल कर दिया, लेकिन भारत का जुल्म दुनिया के सामने नहीं रखा। लेकिन जनरल साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के आने के बाद तो खासतौर पर कश्मीर के हवाले से आवाज उठी है, एक तरह से रिफ्रेश हुआ है ये मामला। आपको लगता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त, अगर हालिया में बात करूं, तो उतनी जारहाना और मौसर है जितनी होनी चाहिए, यहाँ जो वक्त की जरूरत है? देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं पिछली गवर्नमेंट के साथ तो वो तो बहुत फर्क है, इन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन अगर मैं इसको मसले को हल करने के नुक्ता निगाह से देखूं कि उसके मुकाबले में आपने वाकई वो काम किया,
क्योंकि भारत भी अपनी सफारतकारी कर रहा है और आपने करनी है, तो भारत से ज्यादा सफारतकारी होगी, ज्यादा मौसर होगी तो आप कामयाब हो। तो वो तो फिर आपने नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का सफारतकारी का बहुत बड़ा मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला है। एक तरफ वो मुल्क है जिसके वसाइल ज्यादा हैं, जिसको इंटरनेशनली पजीराई है, मंडी है, मार्केट वो अपनी ऑफर करते हैं, $1.5 बिलियन लोगों की, ये सारी चीजें हैं। तो लिहाजा आपको उसकी निस्बत कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी कि आप भारत को कहीं कटहरे में ला सकें। तो वो चीज आपने नहीं, ये हमारी कमजोरी जरूर है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं PMLN की पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर करूं तो उसकी निस्बत तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो जनरल साहब, आपको लगता है कि भारत जो है, अब चाहे उसकी वजह, क्योंकि आपने पहले भी बयान की, कुछ भी हो, अपनी ये जो पॉलिसी है, जारहाना पॉलिसी, उसको तर्क कर सकता है, किसी और तरफ भी, किसी और डायरेक्शन में भी सोच सकता है मोदी गवर्नमेंट खासतौर पर, क्योंकि अभी तो वही गवर्नमेंट है? देखिए, मैंने जैसे कहा, ये वक्ती चीजा आर्जी है। वो चाइना के साथ उलझे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस वक्त एक साइड को डिफ्यूज किया जाए। लेकिन ये कहना कि ये इस रविश को छोड़ देंगे, मोदी के होते हुए तो कतन तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा। लेकिन वैसे भी भारत की पॉलिसी ऐसी ही रही है। मोदी के वक्त पे आके इसमें वायलेंस बहुत ज्यादा आ गई। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ चाल है, मकाराना काम है कि आप वक्ती तौर पे डिफ्यूज करना चाहते हैं एक साइड को। और अगर इतनी बात है तो भारत सिंसियरली इसका कश्मीर का मसला हल करे, उसके हल की तरफ आएगा। जी हम तैयार हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं उसमें अमल करने को तैयार है, तो बात खत्म हो जाती। अभी तक तैयार है तो वो उधर नहीं, बातचीत ये उलझाएंगे आपको, जैसे पीछे जो 70-72 साल गुजरे इस काम, वही बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। 70-75 साल जिस तरीके से गुजरे हैं उसी तरीके से उलझाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन नतीजा जनरल साहब ये कह रहे हैं कि उनको निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर बात होनी चाहिए तो ऑब्वियसली कश्मीर के ऊपर होनी चाहिए। बहुत वजाहत के साथ डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने भी इस इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर के ऊपर होनी चाहिए, टेररिज्म के ऊपर होना चाहिए। ये दो कोर इश्यूज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो हमेशा तैयार है बात करने के लिए। इसके साथ एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद